Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for Class 9, Chapter 3, Constitutional Design, Part 2. In Part 1, I have discussed about the constitutional democracy in South Africa, and in this topic I would like to discuss about the topic of why do we need a constitution. A constitution is a very necessary for all country, and why constitution is necessary, we can take example of South Africa, and the South African example is a good way to understand why we need a constitution. Because in South Africa, the oppressor and oppressed, both group lived with each other, and both had their fears. They did not wanted to trust, or they did not have a trust with each other. Which type of two groups? The black and the white. And the black majority was keen to ensure the democratic principle of the majority was not compromised. The black did not want to compromise their authority. जो ब्लैक ग्रुप था, जो ब्लैक पीपल थे, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे व्हाइट के साथ. और also the white majority was keen to protect its privilege and property. चूँकि बहुत ज़्यादा धन था इन लोग के पास, अपने एक विशेष अधिकार थे व्हाइट के पास, वो भी अपने अधिकारों को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे. So it is a very difficult task to construct a constitution in South Africa. After a long negotiation, I have told, they prepared in 2 years of constitutions. Means we can say after a long negotiation, both parties agreed to a compromise. The white agreed to the principle of majority rule, that of one person one vote, and the basic right of the poor and the worker. व्हाइट को भी अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि जो ब्लैक पर्सन जो मेजॉरिटी में है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाए, जो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था उनको वोट देने का भी अधिकार हो, और वन वोट वन पर्सन के रूल्स को फॉलो किया गया. इस तरह की बातें लॉन्ग नेगोशिएशन के अंतर्गत किया गया. और यह जो बात जो मेजॉरिटी थे, मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट एंड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी. इस तरह की बातें जब पूरी समझौता हो गया कि हम जब इन लोगों में ब्लैक में और वाइट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि हम आपके अधिकारों को इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, फिर द ब्लैक पीपल एग्रीड दैट दे डिड नॉट डिस्टर्ब देयर प्रॉपर्टी, और वाइट वालों ने भी बोला कि ठीक है भाई, वन पर्सन वन वोट के अधिकार द ब्लैक को दिया जाए, सबको वोट देने का अधिकार एक ही जैसा है. और ये सारे लोग एक दूसरे से compromise किए, the black and the white. But this question arise that if they compromise with each other, but how can we ensure that it will be not break up in the future? क्या इनके compromise को future में टूट नहीं सकता है? क्या ब्लैक या द वाइट दोनों में से कोई भी ये बात कह सकता है कि हम इन नियमों को नहीं मानेंगे? और इस प्रश्नों के समाधान के लिए क्या करना चाहिए? इसीलिए कहा जाता है कि इन सारे चीज़ों को ओनली वन वे है टू कंट्रोल इट. विच टाइप ऑफ वन वे? कौन सा एक रास्ता है? तो द ओनली वे इज टू राइट सम रूल्स दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय. The set of basic rule is called constitutions. यह जो नियम हो, जो शर्तें रिटन हो, और इसमें एक इस तरह की बात लिखी जाए, स्पष्ट तरीके से बात लिखी जाए कि what is the rights of the citizens, what's the work of the government, what's the work of what is the relation between the people and government. Everything would be written. Everything would be written, and this a set of written rules is called a constitution. इसे हम constitution कहते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि ये साउथ अफ्रीका में भी हो,
बहुत से ऐसे देश हैं लाइक साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, whether democratic or not, but most countries need to have their these basic rules. साउथ अफ्रीका में तो द ब्लैक एंड वाइट है, और भी देशों के एग्जांपल हम ले सकते हैं where many diverse group lived, more and more caste, religions, linguistic groups are lived with each other. तो जब ढेर सारी विभिन्नताएं देश में हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये साउथ अफ्रीका की तरह अन्य देशों में भी होता है। हाँ, एक चीज़ है, एवरी कंट्री हैज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर डेमोक्रेटिक, बट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। से बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान दिया गया। जैसे कि सारे देश अपना संविधान रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक देश हैं वो तो अपना संविधान बिल्कुल ही रखेंगे। ओके, वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपर लॉ दैट डज मेनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन कानून के ऊपर कानून, सर्वोत्तम कानून, सबसे बड़ा कानून, जिसको कि सभी देशों में जो देश का सुप्रीम कोर्ट होता है उसे इसका सेफगार्ड या उसे रक्षक माना जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके जो फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन हो, आधारभूत ढांचा, जब कोई परिवर्तन हो रहा है, जो गवर्नमेंट लीगल गवर्नमेंट है अगर वो भी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। तो यानी कि जो सरकार आई है वो भी अपने प्रॉफिट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार फेरबदल नहीं कर सकती है। सो वी कैन से इट इज़ द सुप्रीम लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है एक देश को, वहाँ के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सो वी कैन से सम बेसिक फैक्ट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ विद इट। कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। जब एक दूसरे के साथ कई डाइवर्स पीपल रह रहे हैं तो सभी के अधिकारों का इंक्रोचमेंट ना हो एंड एवरी पीपल लिव विद पीसफुल मैनर, और शांतिपूर्वक व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों की भी चर्चा की गई है कि किस देश के कौन सी सरकार, जो गवर्नमेंट जो है वह किस तरह से काम करेगी और कौन कौन से डिसीजन किस सरकार के अंग में, ऑर्गन्स में है, यह बातें स्पष्ट तौर पे लिखी जाती हैं कि डिसीजन मेकिंग कौन है। ओके, थर्ड, इट ले डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर। आल्सो कॉन्स्टिट्यूशन टेल अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पावर ऑफ द सिटीजन्स। सो there would be no conflict between the government and citizens. Everything has been written in constitution. And fourth कह सकते हैं कि it expresses the aspiration of the people about creating a good society. Means constitution creates a good society by the way that it gives a clear suggestion to the citizens and the गवर्नमेंट। स्पष्ट बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जब बनाया गया है उस समय का एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट, वातावरण, माहौल, जो भी कहा जाए, वैसा ना हो जो कि फ्यूचर में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की भी बातें होती है कि इसको अमेंडमेंट करके इसको संशोधन किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन के लिए भी 3 तरह की बातें की जाती है, किस अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से संशोधन होता है। एंड दीज अमेंडमेंट्स would happen according to the atmosphere। तो ये चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। सो आवर टॉपिक दैट व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स about the fact
which we can say constitution is very necessary for a country. Okay. After the war of independence against Britain and the American gave themselves a constitution, and after the revolution of the French, people approved a democratic constitution. Against the Great Britain, when American fought their independence, they gave themselves a constitution. अमेरिकन ने भी अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, and after the French Revolution, the French people gave themselves a democratic constitution. और इस तरह से फ्रेंच पीपल ने भी अपने लिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. मीन्स विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन ए कंट्री हैज नॉट prosper and did not give a country has not prospered to live with the citizens and government. एक कॉन्स्टिट्यूशन के बिना वहाँ के लोग प्रॉस्पर सफल नहीं होंगे, खुशहाली पूर्वक नहीं रहेंगे, वहाँ का नागरिक नहीं रहेगा, एंड देयर वुड बी मोर कॉन्फ्लिक्ट और मोर मिसमैनेजमेंट इन द सोसाइटी. तो इसलिए एक देश में बहुत ज़्यादा संविधान आवश्यक होता है कि एक संविधान हो, और संविधान का रहना देश के लिए बहुत जरूरी है. Okay, and I am going to complete this topic, and in part 3 I would like to discuss about the topic of making of the Indian Constitution. We will discuss about the Indian Constitution. मैं next topic में Indian Constitution के बारे में बात करूँगा. Thank you.